Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. Now this video is for the people who are preparing for SSC CGL examination and यहाँ पे I'm going to tell you another good opportunity that you guys can seek. And that opportunity is of FCI AG3 exam students because it is being expected कि FCI AG3 का notification release हो सकता है after द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, तो कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है. In this video, I'm going to tell you how you people can also target FCI AG3 along with your SSC CGL examination. So that's the agenda of this video. और इस वीडियो में I'm going to tell you what are those steps that you need to follow if you want to target this FCI AG3 exam. So we will see कि कैसे आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो, एज वेल एज क्या कॉमन एरिया है, एज वेल एज जो डिफरेंट है वो आपने क्या करना है, राइट. सो दैट्स द एजेंडा एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session, you can join us on our Telegram channel. So with that, let's start our video and let me tell you the step number 1. So students, देखो कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हो, so it's very important to know कि whether you are eligible for that particular exam or not. So पहले तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि you have to know कि whether you are eligible for FCI AG3 examination or not and know the eligibility criteria for this exam. Okay, so if I say particularly eligibility criteria क्या है, so here in the screen I'm showing you. So for general, if you want to apply for FCAG3 general post, so you just need a graduate degree. ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, you will be eligible. Okay, now another post we have is depot post. उसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है, there is no specific degree required. Okay, FCI से हमें लगता है it is Food Corporation of India, so maybe they are particularly seeking for people who are in agriculture, who are from the agriculture background, right? It's not like that. They have the post in different cadre. Okay, so we have general and depot cadre जहां पे कोई भी graduate अप्लाई कर सकता है. Now next we have is for the सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट. नाउ देखो, अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास ये स्पेसिफिकेशंस है, ये क्वालिफिकेशंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस टेक्निकल एंड अकाउंट पोस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल एंड डीपो पोस्ट. यहाँ पे क्या होता है कि जनरल और डीपो पोस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं. देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा होती है यहाँ पे, बट वही, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं. अगर आपके पास स्पेसिफिकली ये डिग्री है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर टेक्निकल और अकाउंट्स. अकाउंट्स के लिए यू जस्ट नीड बैचलर्स इन कॉमर्स एंड टेक्निकल के लिए अगेन वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल. Here BSc agriculture, if you have done, you can go for this. If you have done BSc with botany, zoology, biotechnology, chemistry, microbiology, food science, you can again apply for AG3 technical. अगर आपने BTech या BE in food science किया है, food tech किया है, food science, agriculture engineering, okay, so again you are eligible for technical post. So you can see a wide range of people can be eligible for technical post. And if you are someone who is preparing for SSC CGL examination and you have these qualifications, you can go for this specific post. Otherwise general और depot की जो post है वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो. you can go for that, right? Now अब हमने एग्जाम एलिजिबिलिटी देख ली. अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि एज लिमिट क्या है. एज लिमिट भी देखना है. एज लिमिट इज 27 ईयर्स फॉर FCI AG3 एग्जाम. ठीक है, वंस वी नो द एग्जाम एलिजिबिलिटी, नेक्स्ट वी नीड टू नो द एग्जाम पैटर्न. तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम FCI AG3 और SSC CGL को साथ में कैसे पढ़े, साथ में कैसे टारगेट करें, राइट? तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, FCI AG3 का एग्जाम पैटर्न जो होता है सेम फेज 1 फेज 2 होता है. एसएससी सीजीएल में भी 2 फेज होते हैं, प्री एंड मेंस. यहाँ पे भी प्री और मेंस होता है. ठीक है, तो प्री में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है FCI AG3 का. यू कैन सी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका जीएस भी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल और करंट अफेयर. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम, आई वुड से ऑन द सेम लाइन वी हैव एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है फेज 1 का, ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है, राइट? अगर हम फेज 2 की बात करें तो देख लेते हैं फेज 2 में FCI में क्या पूछा जाता है. तो फेज 2 में जो पेपर 1 होगा, देखो अगर आप जनरल और डीपो के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ पेपर 1 होगा फेज 2 का. अदरवाइज अगर आपने अकाउंट्स या टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई किया है तो पेपर 1 के साथ आपका पेपर 2 होगा. अब पेपर 2
क्या होता है बेसिकली, इट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। तो आपने जिस भी कैडर में अप्लाई किया है, टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो आपका एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी या एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेंगे। अकाउंट्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका ज्ञान कॉमर्स से क्वेश्चन होंगे, राइट, अकाउंट से क्वेश्चन होंगे। सो वो फेज 2 के पेपर 2 की बात हुई। बट पेपर 1 देखें तो पेपर 1 भी अगेन सेम ही है। वी हैव इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जीएस ऑफ, उसमें भी अगेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे। देन वी हैव जनरल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल, करंट अफेयर है, देन कंप्यूटर अवेयरनेस भी है। ठीक है, अब हमें FCI AG3 का एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया। अब देख लेते हैं क्या कॉमनैलिटी है FCI AG3 और SSC CGL के एग्जामिनेशन पैटर्न में, ताकि why we are saying that SSC CGL students should prepare for FCI AG3 also। ठीक है, तो यहाँ पे you can see, if we see the common area, तो reasoning is common, quants is common, English is common in both the examination, general awareness is also common and computer awareness is also common in the both the examination, right। अब ये आपने SSC CGL के लिए भी पढ़ना है, FCI AG3 के लिए भी पढ़ना है। बट आपने ध्यान क्या रखनी है कुछ चीजें यहाँ पे। देखो, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम जो FCI AG3 में रीजनिंग या क्वांट्स आएगी, क्या वो CGL पैटर्न में आएगी, SSC CGL पैटर्न में, या बैंकिंग पैटर्न में आएगी। ओके, सो द थिंग इज, देखो अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन बेसिक ही रहेंगे। इट्स नॉट कि वो बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे, बट जो टॉपिक्स होंगे आपके रीजनिंग और क्वांट्स के, वो थोड़ा सा बैंकिंग वाले टॉपिक होंगे। लाइक जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में टॉपिक पूछे जाते हैं वो टॉपिक होंगे। तो आप वैसे भी आप रीजनिंग और क्वांट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो SSC CGL के लिए, आपको सिर्फ FCI AG3 के लिए कुछ टॉपिक्स पे फोकस करना है जो कि थोड़ा बैंकिंग पैटर्न पे है। अब वो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत एडवांस लेवल या बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। आपने सिर्फ जो बेसिक इजी टू मॉडरेट लेवल के बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल के टॉपिक्स हैं, वो ही प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग और क्वांट्स में। ठीक है, आपका जो SSC CGL की रीजनिंग और क्वांट्स होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, राइट। आपके रीजनिंग में यहाँ पे टाइम, कैलेंडर, इससे क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्वांट्स में अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आती है SSC CGL में, राइट। बट वो चीज आपकी FCI AG3 में नहीं होगी। FCI AG3 में जो रीजनिंग होगी उसके जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ ये होंगे। ठीक है, वहां पे सेटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन देखोगे। देन वी हैव रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शंस एंड इनपुट आउटपुट। तो जो FCI AG3 की रीजनिंग है वो समवेयर टॉपिक्स जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, बट जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, आप रीजनिंग अगर ये सारे टॉपिक्स SSC CGL में कम कवर कर रहे हो तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा उसको और अच्छे से कवर करना है और इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वांट्स की अगर बात करें तो क्वांट्स अगेन यहाँ पे जो क्वांट्स के टॉपिक हैं FCI AG3 के लिए वो ये है। ठीक है, नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, अगेन बैंकिंग पैटर्न में है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है FCI AG3 के लिए। इन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है FCI AG3 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इंग्लिश में नो चेंजेस इज देयर, नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड। जो आप SSC CGL के लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो दैट विल सफाइज द प्रिपरेशन ऑफ FCI AG3 इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है। अब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जब जनरल अवेयरनेस आता है, अब यहाँ पे दो चीज है, कुछ हमारा GS वाला पार्ट है विच इज योर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इट ऑल्सो द इकोनॉमी पार्ट, राइट। FCI AG3 में भी अगेन अगर आप SSC CGL का GS वाला पार्ट कर रहे हो और करंट अफेयर वाला पार्ट कर रहे हो, it will suffice the preparation of FCI AG3 GA part. देखो, we emphasize, okay, why we are encouraging people who are preparing for SSC CGL to give the FCI AG3 examination. The reason is very solid. क्यों? जो बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हैं, उनका जो GA वाला पार्ट होता है वो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस से रिलेटेड होता है। वो ज्यादा इस तरीके का GA वाला पार्ट कवर करते हैं। तो अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब वो ज्यादा कवर नहीं करते हैं।
तो जो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे हैं, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग कि उनका ऑलरेडी ये सब चीज कवर्ड है। और एफसीआई में यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द जीएस वाला पार्ट, ठीक है, और बोथ प्री में भी होंगे, मेंस में भी होंगे। अगेन ये आपके कट ऑफ में दिखेगा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है तो वो सफिशिएंट होगी एफसीआई AG3 के लिए। और जो बैंकिंग वाले बच्चे होंगे, दे विल एडिशनली नीड टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक, ठीक है। सो यू हैव दिस एज कि आप ऑलरेडी इस सब चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू कैन सी the FCI AG3 as a best next opportunity for you, right? Next, अगर हम कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो अगेन इट इज सफिशिएंट। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है एसएससी सीजीएल में। यहाँ पे आपके सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो एफसीआई AG3 के कंप्यूटर अवेयरनेस के, जिस लाइन पे आए हैं अगेन उन्हीं को प्रैक्टिस करो, उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एफसीआई AG3, ठीक है। तो अगर आप जनरल और डीपो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप टेक्निकल पोस्ट या अकाउंट पोस्ट किसी भी कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने सीजीएल की प्रिपरेशन करी है, तो ऐसे आप अपना एफसीआई AG3 का जो पेपर 1 है प्री का वो, और पेपर 1 जो मेंस का है वो, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बट अब बात ये आती है कि अगर आप टेक्निकल अकाउंट्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपने एडिशनली क्या करना है, ठीक है, उसके लिए आपको एडिशनली क्या एफर्ट लगेगा, क्या आपने देखना है। सो उसके लिए आई वुड टेल यू दैट इसके अलावा आपने अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया, देखो टेक्निकल में क्या होता है, हमारे 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। वी हैव ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमारा एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछेंगे। ग्रुप बी में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। तो वाइल फिलिंग द फॉर्म यू विल चूज कि आपने कौन से ग्रुप से फॉर्म फिल करना है, आपके कौन से ग्रुप से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्म फिल करते टाइम ग्रुप ए या ग्रुप बी सेलेक्ट करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर 2 होगा मेंस का, वहां पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब हम सिर्फ सिलेबस देखते हैं, तो लेट्स सी कि अब ये सिलेबस प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में तो आप ये सब नहीं पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी इस लेवल का नहीं पढ़ रहे हो, राइट। तो इसका करना क्या है, यहाँ पे पेपर 2 कैसे करना है। तो आपने सिलेबस देख लिया, दिस इज द सिलेबस विच वॉज गिवन इन 2022 नोटिफिकेशन, ठीक है। 2022 के नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगी एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या आपने कोर एग्रीकल्चर पढ़ना है, सारा कुछ एग्रीकल्चर का जो पार्ट होता है वो पढ़ना है, तो नहीं, आपने सिर्फ जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है एग्रीकल्चर की, ठीक है, कितना प्रोडक्शन है पल्सेस का, सीरियल्स का कितना प्रोडक्शन है, विच स्टेट इज रैंकिंग हाईएस्ट फॉर द सीरियल्स प्रोडक्शन, पल्सेस प्रोडक्शन, आपने थोड़ा सा ये डेटा देखना है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर आपने देखना है। देन आपने एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी देखो, कहीं ना कहीं अगर आप बायो ग्रुप से हो, आपकी 11th-12th में बायो थी, तो हम जूलॉजी वहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। तो इंसेक्ट्स वगैरह की स्टडी हम करते हैं, तो वही चीज़ है, आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी है उसको कवर करना है। कैसे कवर करना है, तो देखो इसके लिए आप कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्रीकल्चर की होती है उसको रेफर कर सकते हो। वट एवर गिवन इन दैट बुक विल सफाइज द प्रिपरेशन ऑफ एफसीआई AG3। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, वहां से आप एंटोमोलॉजी वाला पार्ट कवर कर लो अच्छे से, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में आपका आता है प्लांट पैथोलॉजी वाला पार्ट, ओके। अगेन ये भी एलिमेंट्री लेवल का आएगा, इट्स नॉट कि आपको बहुत ही इन डेप्थ कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछेंगे कि ये डिजीज किसके थ्रू होती है, विच फंगस इज कॉजिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज, लाइक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच फंगस, राइट। तो आपको जनरल ही आपको प्लांट पैथोलॉजी में पूछेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो प्लांट प्रोटेक्शन अगेन जो अभी आप बुक लोगे उसमें प्लांट पैथोलॉजी वाला पार्ट जितना भी होगा वो पढ़ लो, दैट विल बी सफिशिएंट। थोड़ा सा आपने बस इसके साथ एडिशनली जो करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वो भी अगेन बहुत बेसिक आता है, कोई बहुत टफ इकोनॉमिक्स नहीं आती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है वो आपने देखना है बुक से, ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट। अब नेक्स्ट आता है बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। देखो इफ समवन इज फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो आई एम अज्यूमिंग कि उनके लिए एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी विल नॉट बी द चैलेंज, बट चैलेंज होगा कि पढ़ना कहाँ से है, राइट। तो अब ये बॉटनी जूलॉजी वाला कौन से लेवल का पढ़ना है, ये आपका बीएससी वाला लेवल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 11th and 12th लेवल का ही आएगा,
ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो आपने बॉटनी जूलॉजी 11th-12th में की होगी, एग्रीकल्चर आपने अपने कोर्स में की है, तो आपके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट जो बॉटनी जूलॉजी वाले बच्चे हैं या फिर और ब्रांच वाले बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर थोड़ा इस तरीके से कवर कर लो, ठीक है। और बाकी 11th-12th की बॉटनी तो आप कवर कर ही लोगे। अब क्या करना है कि एनसीईआरटी जो है 11th-12th की, वहां से जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं आप देखोगे ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं वहां पे, वो चैप्टर्स आप कवर कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। इतना ही बस आपने ऐड ऑन करना है अलॉन्ग विद योर एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में अगेन एनसीईआरटी ऑफ 11th-12th की एनसीईआरटी आप देख लो, ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट। तो ये हो गई आपके टेक्निकल पोस्ट को कैसे केटर करना है अलॉन्ग विद योर एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। आपने एक्स्ट्रा क्या करना है एफसीआई AG3 के लिए अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए फिल करते हो, राइट। चलो नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंट्स पोस्ट। अगर आप अगेन एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एलिजिबल हो अकाउंट पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली, और आप इससे फिल करना चाहते हो, तो आपने अगेन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़नी है। जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, कोई भी बेसिक बुक, कॉम्प्रिहेंसिव बुक, इवन 11th-12th की एनसीईआरटी, 11th-12th के जो एनसीईआरटी है दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर कवरिंग ऑल दीज जनरल और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपने टॉपिक्स देखने हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपने अपने बुक से कवर करनी है, एनसीईआरटी से कवर करनी है, दैट विल बी सफिशिएंट। तो यही आपके लिए एक्स्ट्रा स्टेप है अलॉन्ग विद आपका एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जो आपने करना है, ठीक है। आपने ये सब कर लिया, ये सारे स्टेप फॉलो कर लिए, ठीक है, आपने देख लिया क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है, क्या से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा अपनी जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन है उसमें एक स्टेप और ऐड ऑन कर लिया, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एफसीआई AG3, ठीक है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर पीपल हु आर from SSC who are preparing for this SSC CGL examination, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट I would say 70% ऑफ आपका जो पेपर है वो कॉमन ही है। बस आपने थोड़ा सा जो क्वांट रीजनिंग का आप प्रैक्टिस करते हो, टॉपिक्स जो एफसीआई AG3 में पूछे जाते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है जब आप एफसीआई AG3 के लिए पढ़ो, राइट। आपका जो जीएस वाला पार्ट है वो कवर्ड है ऑलरेडी, इंग्लिश वाला पार्ट कवर्ड है। हाँ, अगर आप टेक्निकल और अकाउंट्स के लिए जाते हो देन यू हैव टू जस्ट ऐड ऑन ये टेक्निकल वाला पेपर 2 का पार्ट एंड अकाउंट्स वाला पेपर 2 का पार्ट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नाउ आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो तो वाई दिस एफसीआई AG3 इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज, राइट। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है बहुत ज़्यादा होती है। अगेन थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन करोगे, थोड़ा सा आप चीज़ों पे ध्यान दोगे कि कैसे सिलेबस है, क्या PYQs हैं, you will be easily able to do it. Again, a very doable examination for all people who are preparing for SSC CGL. So with that, I'll end this video. Thank you for watching. And if you have any query, any doubt, you can let me know in the comment section. Also, you can let me know that whether these videos are helpful for you or not. Okay, so that's all. Thank you so much.